Good morning, students. Now we are going to start exercise 11A, in which question number 1, tick the symmetrical figures, put a cross through the figures that are not symmetrical. Students, आपको टिक करना है जो जो फिगर सिमेट्रिकल हैं, मीन्स जिन जिन फिगर्स को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर्स. सो वी विल पुट टिक ऑन दैट सिमेट्रिकल फिगर्स, and if they are not symmetrical, we will put a cross. So start with A part. A part, you are looking that a figure is given, and students, you can see that here we can cut this figure from center, and there are 2 equal parts are showing. So this is symmetrical. Next is B part, and B part clearly is the figure of circle, and we will cut the circle into 2 halves in many ways. So there are infinite lines of symmetry. इस तरीके से यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलेगा. अगर मैं सेंटर से कट करती हूँ स्टूडेंट्स तो अपर और लोअर पार्ट. सो हेयर in the circle figure there are infinite lines of symmetry. So this is tick. C part, only one circle is given and it is also having infinite lines of symmetry, so it is also correct symmetrical figure. Next is triangle. Triangle को भी मैं सेंटर से 2 इक्वल कट करती हूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स आएंगे मेरे पास. सो D पार्ट ऑल्सो करेक्ट. नाउ E पार्ट. E पार्ट में अगर मैं इस फिगर को कट करती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में कट करती हूँ तो ऊपर ये लाइन जा रही है जबकि ये लाइन नीचे से नहीं आ रही है, तो अपर और लोअर पार्ट सेम नहीं है. अगर मैं वर्टिकल वे में कट करती हूँ इसको तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ ये वाली लाइन आ रही है लेकिन इस पार्ट में यहाँ नहीं आ रही है. सो दीज 2 पार्ट्स आर नॉट इक्वल. सो this is not a symmetrical figure and we will put cross. Now F part, and students you are looking F part. If we will cut this figure from horizontal direction, then these upper and lower parts are same and we will put tick. Now G part, H figure, we will cut this from the center and from the horizontal way and vertical way both. So this is symmetrical figure and we will put tick. Next figure, if we will cut this figure from vertical direction, and students you are looking that this part, this sign is going upside and here some downside, so these 2 parts are not same, so H part is not symmetrical. Now I part, अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कट करती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स, आप देख रहे हो इस तरीके से ये लाइन सेम, ये वाला पार्ट सेम, ये वाला पार्ट सेम, सो ऑल पार्ट्स आर सेम. So we will put tick. This is symmetrical figure. And J part, when we cut this figure from the vertical direction, you are looking that this part is like this and this part, this line segment is going upside. This is shorter side and this is longer side. So these 2 parts are not same. So this is not a symmetrical figure. We will put cross. And K part is D alphabet. And students, when we cut this from the horizontal direction, both upper and lower parts are same, so this is symmetrical figure and we will put tick. So this is your question number 1, and come on question number 2. And question number 2 statement is find all the mirror lines. Students, आपको सभी की सभी mirror lines draw करनी है, और mirror lines जब भी आप draw करोगे स्टूडेंट्स तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइंस दोनों को आपको डैश से दिखाना है. तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइंस को कैसे शो करेंगे? डैश, इस तरीके से. कोई भी मिरर लाइन है या लाइन ऑफ सिमेट्री है. नाउ स्टूडेंट्स, मिरर लाइंस मीन्स व्हेन वी कट द फिगर इनटू 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इट्स एग्जैक्टली ओवरलैप द अदर. जब एक पार्ट दूसरे हाफ पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाता है,
देन द लाइन ऑफ सिमेट्री जो है क्या बन जाती है, मिरर लाइंस बन जाती है, तब हमें मिरर लाइंस मिलती हैं. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास A, B, C, D and E parts are given and I am explaining to you only one or second part, A and B part, then other parts you will try yourself. फर्स्ट मिरर लाइन मुझे मिल रही है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करती हूं तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. सेकंड मुझे मिरर लाइन मिलेगी स्टूडेंट, अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस तरीके से अगर मैं करती हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. थर्ड मुझे मिरर लाइन मिलेगी स्टूडेंट इस तरीके से. फोर्थ मिरर लाइन मुझे मिलेगी यहां से, और फिफ्थ मिरर लाइन मुझे मिलेगी स्टूडेंट्स यहां से. सो दीज आर द मिरर लाइंस इन विच काइंड ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. यहां जो सिमेट्री बनती है वो कैसी सिमेट्री बनती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स, बी part, you are looking that 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon is given. So students, here we will draw all the mirror lines. Firstly from the center, secondly from this center, thirdly students from this, and next is this. 4 lines. Now rest of the lines. This is 5th line and this is 6th line. Now C part, star figure is given. One is like this, second from this, and third mirror line is from this. Students, you can take 1, 2, 3, 4, 5, all the corners you have to take ना. 5 corners है आपके पास, तो आपने यहां से लाइंस ड्रॉ करनी है. तो 1 कॉर्नर से हो गई, सेकंड कॉर्नर यूज हो गया, थर्ड कॉर्नर यूज हो गया. अब मुझे यूज करना है ये 4th कॉर्नर, और यहां से ये 5th कॉर्नर. स्टूडेंट्स, जब हम इस कॉर्नर को यूज करेंगे तो इस तरीके से आपको मिरर लाइन मिलेगी, और जब हम ये वाला यूज करेंगे तो ये मिरर लाइन मिलेगी. सो these all are the mirror lines, and rest of the 2 parts you will try by yourself. Now question number 3rd is write the number of lines of symmetry for each of the following figures. आपको number of lines बतानी है, lines of symmetry का number क्या है. And students, you are looking here 3 figures in which number of lines already drawn. So here number of lines are 2 in B part, 1, 2, 3 and 4, and in C part 1, 2, 3, 4 and this 5. So this is question number 3. Now come on question number 4. Are these figures symmetrical? क्या ये सभी figures symmetrical है? Draw a line of symmetry to those that are symmetrical. और जो symmetrical है, फर्स्टली हमें बताना है कि क्या ये सभी figures symmetry में है, symmetrical है. अगर है तो फिर हमें उनकी line of symmetry को क्या करना है, draw करना है. Read the statement carefully students. फर्स्ट फिगर इज ह्यूमन बीइंग. सो अगर मैं इसको सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो बोथ पार्ट्स आर सेम. सो ये सिमेट्री में है ना, सो हम इसको बोलेंगे यस, बिकॉज बोथ पार्ट्स आर सेम. और ड्रॉ करना था और वो हमने कर दिया.
स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग दैट दिस फिगर इज नॉट इन सिमेट्रिकल, बिकॉज अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में कट भी करती हूं तो ये वाला जो पैटर्न है यहां नहीं आया. सो दिस फिगर इज नॉट इन सिमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट. सी पार्ट इज when we cut the figure from the center, these two parts are same, so this is symmetrical. Yes. B part not symmetrical. Now D part not symmetrical because this thing na, this sum here not are given, so that's why clearly no. And this is Christmas tree, and when we cut this in two parts, then this figure will come in symmetry. So this is question number 4. Now come in question number 5. Complete the following figures to make it symmetrical along the line of symmetry. Students हमें इन figures को क्या करना है? Complete. किसके along? Line of symmetry. And you are looking that in A part, this is line of symmetry. Line of symmetry आपको given है. Figure का half part बना हुआ है students, और half part हमें बनाना है. Figure को complete करना है. Students हमें मालूम है जब लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन होता है इट मींस वो फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो गई. 2 इक्वल पार्ट्स में कट हुई तो जो यहां इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो वो कैसा पार्ट होगा? सेम वही पार्ट होगा जैसा पार्ट लेफ्ट साइड पर है. सो स्टूडेंट्स मुझे सेम फिगर राइट साइड पे बनानी है. यहां देखेंगे 2 बॉक्सेस में लिया लाइन, तो मैंने 2 बॉक्सेस को लिया. फिर ये वर्टिकल लाइन 2 बॉक्सेस में है तो मैंने वर्टिकल लाइन 2 बॉक्सेस में लिया. देन इस तरीके से जाना है बाहर की तरफ 2 बॉक्सेस, मैं चली गई बाहर की तरफ 2 बॉक्सेस. फिर मुझे ऐसे सीधा आना है वर्टिकल डायरेक्शन में 3 बॉक्सेस में आ गई, और फिर ऐसे अंदर की तरफ आना है और अंदर की तरफ हम आए और ये क्लोज हो गई और ये कंप्लीट फिगर बन गई. लाइक दिस स्टूडेंट्स you will do all the figures complete. A, B, C, D, E and F parts are here. So you will try rest of the parts by yourself. Okay students, complete the figure only along the line of symmetry. Now come on question number 6 of exercise 11A. Draw the lines of symmetry in the following pictures. आपको इन पिक्चर्स के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है. स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग दैट हेयर फ्लावर इज गिवन एंड 1 2 3 4 5 6 लीव्स आर हेयर. सो मैं इनको 3 पार्ट्स में कट कर सकती हूँ. फर्स्टली मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में से कट कर सकती हूँ, तो दोनों बोथ पार्ट्स कैसे आएंगे? सेम, हाफ हाफ 2, हेयर हाफ एंड हाफ 2, सो बोथ पार्ट्स आर सेम. और मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स. बोथ पार्ट्स विल कम सेम, 3 लीव्स अप साइड एंड 3 लीव्स डाउन साइड. सो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने क्या किया? ड्रॉ करना था, ड्रॉ किया. नाउ सेकेंड फिगर यू आर लुकिंग, इसको हम सिमेट्री में कैसे चेंज कर सकते, कट कर सकते हैं, सिमेट्री में ला सकते हैं. स्टूडेंट्स मेरे को इसको कट करना पड़ेगा. मैंने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से कट किया, और आप देख रहे हो जब मैंने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कट किया तो हाफ पार्ट दिस हाफ पार्ट सेम, दिस थिंग एंड दिस थिंग ऑल्सो हेयर. सो बोथ पार्ट्स आर द सेम एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस फिगर इज इन सिमेट्री. वी कांट कट दिस फिगर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कट नहीं कर सकती बिकॉज अपर और लोअर पार्ट दोनों कैसे आ जाएंगे? डिफरेंट. So this figure is only having one line of symmetry which is in vertical direction. So students, this is the exercise 11A questions. Do this exercise in your book only. Okay students. So rest of the parts you will try yourself. Thanks and have a nice day.